हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चंस पे आते हैं। Read each of the following 4 sentences to find out whether there is any grammatical mistake, error in it. Choose the sentence with no grammatical error as the correct answer. If all the given sentences are grammatically incorrect, choose option E. So, options दिए गए हैं। A. The percentage of stale items was very less. B. I can give you some useful information. C. I looked at Indian contributions to mathematics shows the richness of the scientific tradition in India. D. All are correct. E. None of these. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर के बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ए, द परसेंटेज ऑफ स्टेल आइटम्स वाज वेरी लेस। सोल्यूशन है इन स्टेटमेंट ए was is correct because percentage of takes verb singular in statement. B, information has no plural form, so remove s from informations. In statement C, change over to off. Here only option A is grammatically correct, hence correct answer will be option A. So जितने भी अदर ऑप्शन है सारे इनकरेक्ट हैं। जो करेक्ट है वो कौन है हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Directions. Read each of the following 4 sentences to find out whether there is any grammatical mistake error in it. Choose the sentence with no grammatical error as the correct answer. If all the given sentences are grammatically incorrect, choose option E. So options दिए गए हैं। A. MTNL has started leasing out its building in New Delhi. B. The lump sum compensation to be given to employees of BSNL and MTNL have been fixed at 35 days of salary for each year in service. C. The VRS is approved by the central government in October last year. D. All are correct. E. None of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ई, नन ऑफ दीज। सोल्यूशन है in statement A, change it to its. In statement B, change have to has as compensation is singular in form. In statement C, change is to was as sentence is in past form. All sentences are grammatically incorrect, hence the correct option is E. None of these. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Directions. The sentences given below have an error in one of its 5 parts. Find out which part of the sentence has an error. The alphabet of that part is your answer. So sentence है हमारा The scissors is kept on top of the shelf. Options हैं AA, BB, CC, DD, EE. So दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है बी बी। सोल्यूशन है This is an example of spotting errors in a sentence since some nouns are always used in plural form, so they always follow a plural verb. Therefore, is will be replaced by are since scissors is always used in a plural form. So option B has an error. तो जो नाउन है हमारा scissors ये हमेशा plural form में यूज होता है, so इसलिए ये verb भी लेता है हमारी कैसी plural. So are will be used in place of is. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। Next question is the sentences given below have an error in one of its 5 parts. Find out which part of the sentence has an error. The alphabet of that part is your answer. So sentence है She enrolled herself in a 3 years degree course in fashion designing. So दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा सी सी। सोल्यूशन है This is an example of error spotting in sentences. When nouns indicate measure or length, they remain unchanged in form so long as they are followed by another noun or pronoun. In this sentence, since the noun degree follows the measure or time period, example 3 years, hence it will be written as 3-year degree course. So option C is the incorrect part. So in this sentence, option C is the incorrect part because 3 years is what? 3 years indicate measure or length, so they remain unchanged in form so long as they are followed by another noun or pronoun. So वो follow भी कर रहा है किसको, मतलब followed by हो रहे हैं वो किससे, डिग्री से। तो एक तरह का नाउन फ्रेज बन चुका है। सो इस नाउन फ्रेज के अंदर जो हमारा मेन नाउन है वो है डिग्री, और जो हमारे रेस्ट पार्ट है जो कि 3 इयर्स है वो बन जाएगा मॉडिफायर, और मॉडिफायर जो है हमेशा यूज किए जाते हैं सिंगुलर फॉर्म में। सो अदर वर्ड्स में इसकी एक्सप्लेनेशन ये रहेगी। सो हम यूज करेंगे 3 ईयर, नॉट 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है The sentences given below have an error in one of its 5 parts. Find out which part of the sentence has an error. The alphabet of that part is your answer. So, sentence है हमारा Three requirements necessary for plant growth is soil, temperature and moisture content. So जो 3 रिक्वायरमेंट है वो क्या है नेसेसरी जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए, वो है सोयल, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है सी सी। सोल्यूशन है प्लांट ग्रोथ इज देयर इज द एरर स्पॉटेड इन द सेंटेंस वेयर when there are more than one items r will be used, therefore option C of the given sentence has an error. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स की। सो रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा बिकॉज सब्जेक्ट हमारा रिक्वायरमेंट है। सो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन के पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द sentences given below have an error in one of its 5 parts. Find out which part of the sentence has an error. The alphabet of that part is your answer. So क्वेश्चन है हमारा he purchased some new and innovative equipments. तो उसने कुछ परचेज किए। क्या परचेज किए? कुछ न्यू और इनोवेटिव इक्विपमेंट्स परचेज किए उसने फॉर हिज कंपनी। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा डी डी। सोल्यूशन है इक्विपमेंट्स सिंस इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन इट्स प्लूरल विल रिमेन इक्विपमेंट।
Therefore, the error in option D is the correct answer. तो जो वर्ड है यहाँ पे इक्विपमेंट्स, ये इसे हम रखेंगे सिंगुलर फॉर्म में, इक्विपमेंट, बिकॉज इक्विपमेंट की तरह यूज होता है, ना कि इक्विपमेंट्स बोलेंगे हम इसे। जैसे और भी अदर वर्ड्स है, जैसे मशीनरी है तो हम मशीनरीज नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेशंस नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। इसी तरीके से इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट ही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Directions. The sentences given below have an error in one of its 5 parts. Find out which part of the sentence has an error. The alphabet of that part is your answer. So, question है, the man laid down besides me on the bench in the park. तो man लेट गया। So, दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी। तो सॉल्यूशन है हमारा besides me in option C. beside should be used instead of besides. So हम यूज करेंगे beside का, ना कि besides का। Since besides means in addition to, क्योंकि besides जो होता है हमारा S वाला, उसका मीनिंग क्या होता है? in addition to, यानी additional. And beside means जो बिना S के यूज करते हैं means next to or at the side of, यानी बराबर में। The grammatically correct sentence would be read as the man laid down beside me on the bench at the park. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the sentences given below have an error in one of its 5 parts. Find out which part of the sentence has an error. The alphabet of that part is your answer. So, sentence है हमारा, my brother was first to get a degree. So, दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी। सोल्यूशन है फर्स्ट, द शुड बी यूज्ड or should be added before first because the sentence is expressing a quality and at times common nouns are used as abstract nouns to express qualities. Therefore option C is the correct answer. So यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जो वर्ड लिखा है यहाँ पे फर्स्ट, इससे पहले हम यूज करेंगे द। क्लियर? So the first to get a degree, the first, the second, इस तरह से। Next question, in the following questions there are some errors in every sentence. Find the part of the sentence which has an error. That particular part is your answer. If there is no error, your answer is D. So SBI clerk means 2023 का क्वेश्चन है शी इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर बट नन ऑफ हर डॉटर्स परस्यू द मेडिकल फील्ड। सो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है लेकिन उसकी जो डॉटर्स है उनमें से किसी ने भी क्या नहीं करा, परस्यू करने की बात चली क्या, मेडिकल फील्ड को। जैसे होता है ना घर में, जैसे कोई सीए है तो उसके जो बच्चे हैं यूजुअली देखे जाएंगे, सीए, डॉक्टर है तो डॉक्टर देखे जाएंगे, इस तरीके से कही जा रही बात। सो ऑप्शन दिए गए हैं, ए शी इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर, बी बट नन ऑफ हर डॉटर्स, सी परस्यू द मेडिकल फील्ड, डी नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, परस्यू द मेडिकल फील्ड। सोल्यूशन है द एरर इज इन द थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सिंस द सेंटेंस फिनिशेस इन पास्ट टेंस द वर्ड परस्यू विल बिकम परस्यूड। सो ये जो सेंटेंस है सजेस्ट कर रहा है पास्ट को, तो इसलिए हम परस्यूड यूज करेंगे ना कि परस्यू। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, in the following questions, there are some errors in every sentence. Find the part of the sentence which has an error. That particular part is your answer. If there is no error, your answer is D. So, sentence है हमारा, after knowing the truth, he moved ahead and made the right choice.
तो सच जानने के बाद वो he moved ahead and made the right choice. Options हैं after knowing the truth, B he moved ahead, C and made the right choice, D no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ही मूव अहेड। सोल्यूशन है द एरर इन is in the second part of the sentence. The grammatically correct way of writing the sentence will be after knowing the truth, he went ahead and made the right choice. So he went ahead will be used here. It is the more appropriate sentence. Next question. In the following questions, there are some errors in every sentence. Find the part of the sentence which has an error. That particular part is your answer. If there is no error, your answer is D. तो सेंटेंस है हमारा हिज ब्रदर वॉज वेट इन द रेन while रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए हिज ब्रदर, बी वॉज वेट इन द रेन, सी while रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस, डी नो एरर। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारा बी वॉज वेट इन द रेन। सोल्यूशन है the error lies in the second part of the sentence. The grammatically correct way of writing the sentence is his brother got wet in the rain while returning from office. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास को सजेस्ट कर रहा है और वैसे भी ये एक चेंज इन कंडीशन को रेफर कर रहा है, तो हम गेट का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने पास्ट को रेफर कर रहे हैं तो गॉट यूज कर लिया। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 sentences are given and you have to choose the one which has some or any grammatical error in it. If all the given 4 sentences are correct, choose option E as your choice. So SBI PO मेंस का क्वेश्चन है। सो ऑप्शंस दिए गए हैं ए द delicious aroma of freshly baked bread filled the kitchen. B having a strong work ethic is important for success in any career. C wearing a hat and a scarf is essential when it is snowing outside. D neither John nor Mary have finished their assignments yet. So दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी डी। सोल्यूशन है neither John nor Mary have finished their assignments yet. Neither is used with singular verbs. So neither जो है वो singular verbs के साथ यूज होता है. So the correct verb form should be has instead of have. The sentence should be neither John nor Mary has finished their assignments yet. So in other words, you can say when two subjects are connected with neither nor, so verb will agree with the nearest subject. So the nearest subject is Mary. That's why we will use has here. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 sentences are given and you have to choose the one which has some or any grammatical error in it. If all the given 4 sentences are correct, choose option E as your choice. So options दिए गए हैं A she decided to go for a walk in the park despite the rain. B the librarian helped me find the book I was looking for. C many tourists visit the Eiffel Tower every year. D because of the traffic jam we arrived late for the meeting. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर ई, नो एरर। सोल्यूशन है ऑल सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। सो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं सारे ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट ऑप्शन ई, नो एरर। तो आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मेंस का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है द कंपनीज पॉलिसी रिगार्डिंग सिक लीव आर क्वाइट जेनरस। तो कंपनी की जो पॉलिसी है किससे संबंधित, सिक लीव से, वो बहुत ज्यादा जेनरस है। तो एक तरीके से मतलब उनके फेवर में रहती है। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी सी। सोल्यूशन है द सब्जेक्ट एग्रीमेंट इज इनकरेक्ट। द सब्जेक्ट पॉलिसी इज सिंगुलर सो द वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। द कंपनीज पॉलिसी रिगार्डिंग सिक लीव इज क्वाइट जेनरस इज द करेक्ट सेंटेंस। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंपनीज पॉलिसी। ठीक है, जो कंपनी की पॉलिसी है, तो पॉलिसी यहाँ पे जो वर्ड है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इज इंस्टेड ऑफ आर। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट ऑप्शन ई, नो एरर। तो अगेन आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मेंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो हर प्रत्येक जो भी स्टूडेंट है उन सब ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा सी सी। सॉल्यूशन है द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज इनकरेक्ट। द सब्जेक्ट एवरी स्टूडेंट इज सिंगुलर सो द वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर। सो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जो सब्जेक्ट है वो हमारा है स्टूडेंट, और उससे पहले हमने डिटर्मिनर यूज किया हुआ है एवरी, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट स्टूडेंट वी विल यूज सिंगुलर वर्ब हैज, नॉट हैव। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Directions in the following questions, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select option E, no error. तो सेंटेंस है शी हैज बीन वर्किंग एट द सेम कंपनी फॉर ओवर 10 years। तो वो सेम कंपनी में काम कर रही है पिछले 10 सालों से। तो इन दिस सेंटेंस आपको क्या करना है, आपको एक एरर फाइंड आउट करना है, किसी भी पार्ट में हो सकता है। सो एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ई ई। सोल्यूशन है देयर इज नो एरर इन द गिवन सेंटेंस, द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। जैसे कि हमें रेफर करना था पिछले 10 साल से या 10 साल से, तो वो काम 10 साल पहले शुरू हुआ था और अब तक चलता आ रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जो कि हमने यूज किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हैज बीन वर्किंग, हैज बीन प्लस वर्ब प्लस वन प्लस आईएनजी। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
Next, in the following questions, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error. Select the appropriate option if a sentence is free from error. Select option E, no error. So क्वेश्चन है हमारा, द न्यू प्रोजेक्ट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है ई. सोल्यूशन है, देयर इज नो एरर इन द गिवन सेंटेंस, द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. सो इस सेंटेंस में अगेन एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है. जो न्यू प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा समय और रिसोर्सेज लगेगी उसमें. तो फ्यूचर को लेकर बात चली, उसका प्रोडिक्शन किया जा रहा है. अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं. In the following questions, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select option E, no error. So, question है हमारा, the team members has been informed about the meeting tomorrow. तो टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है किसके बारे में, मीटिंग को लेके टुमारो. सो इस सेंटेंस में आपको फिर अगेन एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी. सोल्यूशन है, the subject verb agreement is incorrect. The subject team members is plural. So the verb should also be plural as well. So हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा टीम मेंबर्स, और टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो है प्लूरल वर्ब. जो कि प्लूरल वर्ब क्या है हमारी, हैव, ना कि हैज. हैज है हमारी सिंगुलर वर्ब. सो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या है, द टीम मेंबर्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग टुमारो. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, directions. The sentences given below have been divided into 5 parts. One part has an error in it. Identify the erroneous part and mark that option as your answer. So हमारा जो सेंटेंस है वो पढ़ लेते हैं. Exhausted from campaigning for elections, we decided to rest it under the shade of the large oak tree growing nearby. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी. सोल्यूशन है, the phrase to rested is grammatically inappropriate. Instead of rested, the infinitive form rest should be used to correct the sentence. So ये जो आप देख पा रहे हैं हमने यूज कर रखा है डिसाइडेड के बाद टू, और टू के बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि 2 + V1 मिलके बन जाएगा इन्फिनेटिव. तो हम यूज करेंगे वो डिसाइडेड टू रेस्ट, ना कि रेस्टेड. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस. The sentences given below have been divided into 5 parts. One part has an error in it. Identify the erroneous part and mark that option as your answer. So RRB Officer Skill 1 means का question है. Despite careful planning, the project encountered several unforeseen problems that delayed its completion. So careful planning के बावजूद भी जो प्रोजेक्ट था उसको क्या पाया उसने, several कई तरह की क्या unforeseen problems जिसने कि डिले कर दिया उसके कंप्लीशन को. आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है.
आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ई, नो एरर। सोल्यूशन है देयर इज नो एरर इन द गिवन सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द sentences given below have been divided into 5 parts. One part has an error in it. Identify the erroneous part and mark that option as your answer. So again the sentence. The children chased the brightly colored butterfly through the meadows, their laughter echoing in the air. So दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर मेरा बी। बी सोल्यूशन है द फर्स्ट टाइम द बटरफ्लाई इज मेंशन it's likely indefinite. We don't know yet which specific butterfly the children are chasing. Therefore, a brightly colored butterfly would be more appropriate. तो जो सेंटेंस दिया गया है इसमें हमने यूज किया हुआ है द ब्राइटली कलर्ड बटरफ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई को हम क्या कर रहे हैं स्पेसिफिक बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे सेंटेंस से क्लियर नहीं है कि बटरफ्लाई स्पेसिफिक थी, बिकॉज हम इन्हें पहली बार मेंशन कर रहे हैं। पहली बार मेंशन करने पे जो चीज हम मेंशन करते हैं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं उसको, और जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो लिसनर के लिए और रीडर के लिए क्या होता है नॉन। तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे आ ब्राइटली कलर्ड बटरफ्लाई, जो कि इंडेफिनेट हो जाएगा लगाने से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द sentences given below have been divided into 5 parts. One part has an error in it. Identify the erroneous part and mark that option as your answer. So sentence है हमारा as a result of studying diligently she achieved excellent grades throughout the semester. So परिणाम स्वरूप जो बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टडिंग डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब क्या हो गया मेहनत से। शी अचीव्ड एक्सीलेंट ग्रेड्स, उसने अचीव किया एक्सीलेंट ग्रेड्स थ्रू आउट द सेमेस्टर, जितना भी सेमेस्टर था पूरा का पूरा उसमें। तो आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ई, नो एरर। सोल्यूशन है द एंटायर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है The following questions have been split into 5 segments. Identify the segment that contains grammatical error. If there is no error in the sentence, select E as your answer. So, question है हमारा his grades are too low to secure admission in a prestigious college. So उसके जो मार्क्स है वो इतने लो हैं कि वो उसे एडमिशन नहीं मिल सकता किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में। ये बात चल रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन दिए गए his grades are B too low to secure, C admission in, D a prestigious college, E no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा बी टू लो टू सिक्योर। सोल्यूशन है द करेक्ट सेंटेंस विल बी हिज ग्रेड्स आर टू लो टू सिक्योर एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस कॉलेज। द वर्ड टू लो टू हैव अ नेगेटिव मीनिंग, इट मीन्स मोर देन इज नेसेसरी और डिजायरेबल। सो हम टी ओ टू के बजाय हम यूज करेंगे टी डब्ल्यू टू। आशा करते हैं आप समझ चुके क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। Next question is the following questions have been split into 5 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. If there is no error in the sentence, select E as your answer. So question is the garbage were first sun dried for 1 to 3 days to bring down the moisture level. So garbage जो था उसको पहली बार जो सन ड्राइड किया गया 1 से 3 दिन के लिए, क्या करने के लिए, टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। ब्रिंग डाउन का मतलब कम करना। तो ऑप्शन दिए गए ए द गार्बेज, बी वर फर्स्ट सन ड्राइड, सी
for 1 to 3 days. D, to bring down the moisture level. E, no error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, वर फर्स्ट सन ड्राइड। सोल्यूशन है the correct sentence will be the garbage was first sun dried for 1 to 3 days to bring down the moisture level. The word garbage is an uncountable noun as it is used as it is in both singular and plural forms. So word first sun dried. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Next question. In directions, the following questions have been split into 5 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. If there is no error in the sentence, select E as your answer. So, sentence है education do not mean teaching the population using facts and figures. It means teaching how to behave. So, education ये नहीं कि population को पढ़ाना एक तरीके से कई लोगों को पढ़ाना, कई सारे लोगों को पढ़ाना using the facts and figure, facts और figure का यूज करके, बल्कि इसका मतलब क्या है? It means teaching how to behave. किस तरह से behave करना चाहिए हमें, हमारे रिएक्शंस, हमारा बिहेवियर एजुकेशन में के द्वारा सही होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए ए एजुकेशन डू नॉट, बी मीन टीचिंग द पॉपुलेशन, सी यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, डी इट मीन्स टीचिंग हाउ टू बिहेव, ई नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए एजुकेशन डू नॉट। सोल्यूशन है since education is a singular subject, hence the plural form of do will be used. Example does. The sentence will now become education does not mean teaching the population using facts and figure, it means teaching how to behave. तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इसमें एजुकेशन। एजुकेशन ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम यूज करेंगे डज नॉट ना कि डू नॉट। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So next question है हमारा the following questions have been split into 5 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. If there is no error in the sentence, select E as your answer. So question है हमारा the president said we will soon become a developed nation in the near future. So president ने कहा कि जल्दी हम क्या बन जाएंगे, एक डेवलप नेशन। जो आने वाला हमारा फ्यूचर है उसमें नजदीकी फ्यूचर। So ऑप्शंस दिए गए A the president said, B we will soon become, C a developed nation, D in the near future and E no error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ई नो एरर। सोल्यूशन है देयर इज नो एरर इन द अबव गिवन सेंटेंस, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सही सेंटेंस है बिल्कुल। रिपोर्टिंग वर्ब भी सही है, रिपोर्ट स्पीच भी सही तरीके से है, पंक्चुएटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The given sentence has been broken up into 4 different parts. The error, if any, will be in any one part of the sentence. Select the option which contains the part of the sentence which has an error, spelling, grammatical, or contextual. If there is no error, choose option E. So question है parts of northern France were also put in drought alert with water supplies to businesses, farmers, and ordinary residents restricted. So options है हमारे parts of northern France were also be put in drought alert with C water supplies to businesses, D farmers and ordinary residents restricted, E no error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा बी, पुट इन ड्रॉट अलर्ट विद। सोल्यूशन है error lies in the word put in part B. It should be put on instead of put in. Next question है, the given sentence has been broken up into 4 different parts. The error, if any, will be in any one part of the sentence. Select the option which contains the part of the sentence which has an error, spelling, grammatical or contextual. If there is no error, choose option E. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. The index is a useful tool as it helps identify the problems as well as the successes, stories, and provides an opportunity for states to learn from each other's successes as well as failures. सो इंडेक्स जो है वो यूजफुल टूल है जो कि हेल्प करता है पहचानने में क्या प्रॉब्लम्स को, साथ ही साथ किसको, द सक्सेस स्टोरीज को, एंड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है किसके लिए, वो स्टेट्स क्या करने के लिए, टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स सक्सेसेस एज वेल एज फेलियर्स, जो हमारी सक्सेसेस हैं, कामयाबी आए हमारी, और फेलियर्स हैं उनसे. सो ऑप्शंस दिए गए हैं. A, the index is a useful tool as it helps identify. B, the problems as well as the success stories. C, provides an opportunity for states to learn. D, from each other's successes as well as failures. E, no error. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है. आप आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ई, नो एरर. सोल्यूशन है देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, ऑल पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट. सो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, जितने भी इसके पार्ट हैं वो सारे ग्रामेटिकली करेक्ट हैं. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं. Next question, the given sentence has been broken up into 4 different parts. The error, if any, will be in any one part of the sentence. Select the option which contains the part of the sentence which has an error. Spelling, grammatical, or contextual. If there is no error, choose option E. So question, a demand usual picks up in the second half of the year due to the wedding season. So दिए गए sentence में आपके options दिए गए हैं. Demand usual picks up. B, in the second half of. C, the year guide due to. D, the wedding season. E, no error. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ए, डिमांड यूजुअल पिक्सअप. सोल्यूशन है द एरर इज इन पार्ट ए, डिमांड यूजुअल पिक्सअप इज इनकरेक्ट. इट शुड बी डिमांड यूजुअली पिक्सअप. तो डिमांड जो है अक्सर क्या पिकअप करती है, इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर ड्यू टू द वेडिंग सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गिवन सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. द एरर, इफ एनी, विल बी इन any one part of the sentence. Select the option which contains the part of the sentence which has an error, spelling, grammatical, contextual. If there is no error, choose option A. So sentence हमारा, even India is feeling the pinches and it has increasingly weighed on business confidence. The options दिए गए, even India is. B, feeling the pinches. C, and it has increasingly. D, weighed on business confidence. E, no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव से करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी, फीलिंग द पिंचेस. इस सॉल्यूशन है द एरर्स इन पार्ट बी, फीलिंग द पिंचेस शुड बी फीलिंग द पिंच. द फ्रेज शुड बी फीलिंग द पिंच टू इंडिकेट एक्सप्रेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी. सो एक्सप्रेस करता है फाइनेंशियल डिफिकल्टी को. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. द एरर, if any, will be in any one part of the sentence. Select the option which contains the part of the sentence which has an error, spelling, grammatical, contextual. If there is no error, choose option E. While the tooth fairy continues and to lag ahead, these developments, there are already piggy bank apps, ones for pocket money with contactless cards, and schools use cashless payment systems for lunches and trips. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं.
तो ऑप्शन दिए गए, while the tooth fairy continues to lag ahead. B, teach developments, there are already piggy bank apps. C, ones for pocket money with contactless cards. And D, schools use cashless payment systems for lunches and trips. नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा ए, while the tooth fairy continues to lag ahead. सोल्यूशन है, the error is in part A, while the tooth fairy continues to lag ahead is incorrect. It should be while the tooth fairy continues to lag behind. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी एक अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।